circular motion. And next topic of circular motion is, like we bend the road towards the center of the circle or center of the turn. A bike rider which is moving on a curved road. While bike rider bends towards the center of the road, automatically this action is being done by the bike rider. So actually, to understand it, we have to observe the forces acting on the bike rider. Bike rider, that is bike plus rider, has a common point as center of mass, where the mass of whole system acts. Let this be the center of mass of the system. Now observe, gravitational force will act vertically downward. Normal reaction force should act from the contact point of tire and the road. This is contact point of tire and the road. So normal reaction force should be perpendicular to the road and like this, perpendicular to the road, normal reaction force, then centripetal force which will try to pull this bike rider away in radially outward direction from the center of the curve. And when this skidding tendency will arise between the tire and the road, then friction will come into the picture towards the center of the turn. Under these 1, 2, 3 and 4 forces, actually vehicle faces two types of challenges when vehicle is moving over a curved road. One is that vehicle has to balance, or the balance of the forces should be there so that vehicle is not moving towards an unbalanced force. Like N should balance mg, and this frictional force should balance centrifugal force so that vehicle is not skidding towards the centrifugal force, or vehicle is not getting disbalanced under the action of any of these pair of forces. This is known as translational equilibrium, कि vehicle जिस रोड पे चल रहा है वो अपनी लीनियर मोशन में बिना डिफ्लेक्ट हुए घूम जाए, चला जाए. और दूसरी तरह का चैलेंज फेस होता है कि ये जो व्हीकल है इस पर इन फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट भी काम कर रहा है. तो अगर किसी फोर्स का अनबैलेंस टर्निंग इफेक्ट बचा रह जाता है व्हीकल पर, बैलेंस नहीं हो पाता किसी दूसरे फोर्स के टर्निंग इफेक्ट से, तो ये जो राइडर है ये टॉपल डाउन, ही विल टॉपल डाउन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दैट टॉर्क, अनबैलेंस्ड टॉर्क. तो हम लोगों ने इन फोर्सेस को बैलेंस करके पूरा डिस्कशन समझा कि कैसे बाइक राइडर एक कर्व्ड रोड पर v वेलोसिटी से r टर्न पर घूमते, r रेडियस के टर्न पर घूमते हुए सेफली टर्न कर सकता है अगर उसकी वेलोसिटी और उसकी वजह से जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो फ्रिक्शन से बैलेंस हो पाए. लेकिन अगर हम इन फोर्सेस को ध्यान से देखें तो बाइक राइडर के सेंटर ऑफ मास से mg, n और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये तीनों पास हो रहे हैं. इसलिए अगर इन तीनों का टर्निंग इफेक्ट इस पॉइंट के अबाउट
निकालना चाहें तो वो 0 होगा। टर्निंग इफेक्ट हमको याद होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करने के लिए फ्री है तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होता है। और क्योंकि एन एम जी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहे हैं, इसलिए इन फोर्सेस का टॉर्क जो कि कैलकुलेट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, वो अगर फोर्स की 0 है, जो कि यहाँ पर इन 3 फोर्सेस के लिए है, तो ये बाइक राइडर इन तीनों की वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बट जस्ट ऑब्जर्व द फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force is having perpendicular distance from the point of rotation, that is always center of mass if the body is free to rotate. So it is having finite d perpendicular distance, which will make this force to exert a torque on this bike rider in anti-clockwise direction, and this bike rider will experience frictional force torque which is trying to rotate this object anti-clockwise. If you take this bike rider, it is represented with help of a pencil, and this is center of mass of this bike rider. Then this force, I can exert force in this direction, and this is point of rotation where I fixed the pencil, and you can see that pencil has anti-clockwise motion. Getting this clear? So frictional force tries to topple down the bike rider in anti-clockwise direction. This is the next challenge which is experienced by all the vehicles which are moving on a curved track. So what we do to solve this problem? Have you seen the bike race? In the bike race, bike rider bends towards the center of the track, curved track, like this. बहुत तेज रफ्तार से रेसिंग बाइक्स घूमती हैं कर्व ट्रैक पर, और उस तेज रफ्तार की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और उसके टॉर्क को, फ्रिक्शन को और उसके टॉर्क को बैलेंस करने के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बाइक राइडर हमेशा टर्न की ओर बेंड कर जाते हैं, और रेसिंग बाइक्स जो कि बहुत तेज़ रफ्तार से घूम रही होती हैं, वो तो ये थीटा बहुत बड़ा एंगल लेते हुए बेंड कर जाती हैं फ्रॉम द वर्टिकल। तो देखते हैं कि अगर बाइक राइडर बेंड कर जाएगा तो कैसे बैलेंस मेंटेन होता है। सबसे पहले ट्रांसलेशनल बैलेंस की बात कर ले तो अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, and centrifugal force is balanced by the frictional force. So translational equilibrium is maintained by N equating mg and centrifugal force equating frictional force, right? तो हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देते हैं कि N mg के बराबर और mv स्क्वायर अपॉन r अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। लेकिन जो टॉर्क फ्रिक्शन लगा रहा था, जिसकी वजह से बाइक राइडर एंटी क्लॉकवाइज टॉपल डाउन होने की टेंडेंसी रख रहा था, उसको बेंडिंग ने कैसे बैलेंस किया। तो अब इन दोनों सिचुएशंस को जरा कंपेयर करते हैं।
यहाँ पर mv² अपॉन r, n और mg तीनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे थे, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अकेला बच रहा था जो अनबैलेंस टॉर्क लगाकर बाइक राइडर को टॉपल डाउन कर रहा था। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पर mv² अपॉन r और mg तो अभी भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, लेकिन बाइक राइडर के बेंड हो जाने की वजह से at an angle theta from the vertical. See, now normal reaction force and mg, they don't have their line of action same. Now mg is shifted towards right along with the center of mass, क्योंकि mg तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है कांटेक्ट पॉइंट पर रोड और टायर की। तो बेंड होने की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो अभी भी टायर और रोड के कांटेक्ट पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन mg शिफ्ट हो गया विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स राइट। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि अगर आप बाइक राइडर को इस पेंसिल से रिप्रेजेंट करो तो ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर मैं इसे होल्ड कर लेती हूँ, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो बाइक राइडर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं बाइक राइडर को इस पेंसिल से फिर से रिप्रेजेंट करूँ और अब मैं फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन में लगाऊँ, तो आप देखो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, और इस तरीके से ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक दूसरे के टॉर्क को बैलेंस कर लेंगे और बाइक राइडर सेफली कर्व्ड रोड पे मूव कर जाएगा। ये है बेंडिंग के पीछे की लॉजिक। तो इसको मैथमेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि बाइक राइडर को कितने एंगल पर घूमना चाहिए, बेंड होना चाहिए अगर वो v वेलोसिटी से r रेडियस के टर्न पर सेफली कर्व पे घूम जाना चाहें। तो मैथमेटिकल डिस्कशन देखते हैं ज़रा। तो अब हम लोग देखते हैं कि mg और mv² अपॉन r ये दोनों तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं तो इनका तो कोई टर्निंग इफेक्ट है नहीं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से h परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क है, वो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इनटू h। इसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से L परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क हो जाएगा N इंटू L। अब इनको बैलेंस करना चाहिए अगर कोई भी टर्निंग इफेक्ट डोमिनेट न करे तो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये बाइक राइडर कर्व्ड ट्रैक पर चले तो अगर ये बैलेंस कर लेंगे तो आप देखो L अपॉन H that will be equal to F upon N, और L upon H which is equal to F upon N एक्चुअली क्या दे रहा है, ये L है और ये H है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन H ये असल में वो एंगल थीटा दे रहा है जो बाइक राइडर को बेंड होना चाहिए फ्रॉम द वर्टिकल। तो tan थीटा शुड बी इक्वल टू L अपॉन H। तो हमने L अपॉन H को tan थीटा लिख दिया क्योंकि वो इन टर्न इक्वल टू F अपॉन N है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स is equal to mg as bike rider is balanced in vertical direction. So नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जगह हमने mg लिख दिया। अब हमें पता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू n होती है, तो यहाँ से हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिला कि बाइक राइडर को कितना बेंड करना चाहिए असल में वो सरफेस की रफनेस पर डिपेंड करता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर।
तो अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता हो तो हम कितने एंगल पर बाइक राइडर वर्टिकल से बेंड हो जाए टुवर्ड्स द सेंटर वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि v वेलोसिटी से चलते हुए r रेडियस के टर्न पर बाइक राइडर को कितना घूमना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया हो, स्पीड ऑफ द राइडर फिक्स की गई हो और रेडियस ऑफ द टर्न फिक्स किया गया हो, तो हम सवाल को कैसे करेंगे, कैसे बेंडिंग एंगल निकालेंगे, अब उसको समझ लेते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि tan थीटा यानी बेंडिंग एंगल L/h है, वो इन टर्न मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तो उस वेलोसिटी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है जिस वेलोसिटी से बाइक राइडर कर्व्ड रोड पे चल रहा है। तो इस वैल्यू को हम उठाकर यहाँ रख देते हैं। अगर इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखा और n की जगह mg रखा तो हमको एंगल पता चलता है अगर हमें व्हीकल की वेलोसिटी और टर्न का रेडियस पता हो तो tan थीटा के बच्चों दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। एक tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, ये अप्लाई करेंगे जब हमको बाइक राइडर की वेलोसिटी और रेडियस ऑफ टर्न दिया हो, और tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर है, ये अप्लाई करेंगे जब हमको रफनेस ऑफ द रोड पता हो। तो ये एक बढ़िया डिस्कशन था कि बाइक राइडर को कितना बेंड होना चाहिए और क्यों बेंड होना चाहिए। अब तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तुम्हारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नोट्स जो तुमको लिखने चाहिए, मैंने वो सारे नोट्स प्रॉपरली लिखे हुए हैं और जिस लैंग्वेज में मैंने तुमको समझाया है उसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो अब उनको तुम नोट करोगे। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। एक वीडियो में डालने वाली हूँ कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए बच्चों को, स्मार्ट तरीका, जिससे वो एग्ज़ाम के टाइम एक कंसाइज कंटेंट रखें अपने पास, जिसको वो रिवाइज कर सके और स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम के लिए जा सके। तो बहुत जल्दी मैं आपको उस स्ट्रेटजी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आप वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर बाइक राइडर बेंड नहीं हो और वर्टिकली अपराइट पोस्चर में ही टर्न करने की कोशिश करे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो अचीव हो जाएगा, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो पाएगा, जो कि सारे फोर्सेस का टॉर्क, वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिलेगा। और वो यहाँ इस वर्टिकल अपराइट पोजीशन पर टर्न पर कर्व्ड रोड पर चलने से नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन अनबैलेंस टॉर्क प्रोड्यूस करता रहेगा। तो अब जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, उनके बैलेंस्ड और टेक्निकली करेक्ट लैंग्वेज में आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे, वो ही इस नोट्स में तुमको बताया गया है। खासकर डायग्राम और उसके फोर्सेस आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपके आंसर्स बेहतरीन हों और पढ़ने वाले को इम्प्रेस करें। और यहाँ पर हम टॉर्क बैलेंस करके कितने एंगल पर बेंड करे बाइक राइडर, उसका फॉर्मूला फाइनली डिराइव कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों सिंपल पेंडुलम पर आते हैं, क्योंकि सिंपल पेंडुलम अगर ऑसिलेट करता है तो भी, और अगर वर्टिकल सर्कल पर कंप्लीट मोशन करता है तो भी, और अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल पर कंप्लीट मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, तो भी सिंपल पेंडुलम इज केस ऑफ सर्कुलर मोशन, काइंड ऑफ केस ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे।